स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने देखा CMIS, AMIS एंड कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम सच एज लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। ओके, आज हम लोग देखेंगे एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस। Generally, antigens are any foreign substance present outside the body, okay, such as toxin, some particles, some pathogens that induce our immune system to develop immune cells or cells of immune system such as B lymphocyte, T lymphocytes and antibodies. Okay, any foreign substance that develops antibodies, lymphocyte cells in our body that produce response called antigens. Okay, antigens are also called immunogens. Antigens का दूसरा नाम है immunogens, and immunogens are generally proteinous or large polysaccharides. Generally protein and large polysaccharides having large molecular mass, approximately 8,000 Daltons or more than 8,000 Daltons. Okay, now see, antigens or immunogens, any foreign substance, toxin, pathogens or particles which induces the immune system of body to produce antibodies or cells of immune system called antigens or immunogens. Okay, generally it is protein and large polysaccharides, proteins or large polysaccharides. Okay, it often has high molecular mass such as 8,000 Daltons or more. ठीक है, but some substance with low molecular weight also produce immune response in our body. सम सब्सटेंस जिसका कि मोलिकुलर वेट कम है और वह भी इम्यून रिस्पांस क्रिएट करता है, लेकिन वह डायरेक्टली रिस्पांस क्रिएट नहीं करता है, वह किसी न किसी दूसरे अदर सब्सटेंस के हेल्प से रिस्पांस क्रिएट करता है, और वैसे सब्सटेंस का नाम देते हैं हेप्टेंस। वैसे सब्सटेंस का नाम क्या देंगे? हेप्टेंस। हेप्टेंस मीन्स सब्सटेंसेस with low molecular mass can produce immune response. Okay, but इसका अगर एग्जांपल देखें, सच एज डस्ट, drugs, animal dandruffs, etc. But these are not able to produce immune response alone. अकेले यह कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेगा, इसीलिए हेप्टन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन। incomplete antigen. Okay, and the substance which
elicit, directly produce immune response called complete antigens. Sorry, antigens. Okay, and the part site of antigens which are responsible for the attachment with antibodies. एंटीजेंस का साइट जो कि एंटीबॉडी से अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम देते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनांट्स, that are called antigenic determinants. Okay, now see, antigenic determinants or epitopes generally part or site of antigen which is recognized by antibodies और lymphocytes. कोई भी हमारे बॉडी में अगर फॉरेन पार्टिकल इंटर किया है तो वह एंटीजेन की तरह बिहेव करेगा और उस एंटीजेन को पहचानने का काम करता है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज को पहचानता है, समाप्त करता है. तो कुछ न कुछ ऐसा पार्ट्स है एंटीजेन में जो कि एंटीबॉडीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, also called epitope. Site part of antigen which is recognized by antibodies or lymphocyte is called antigenic determinants. And part of antibodies which acts as receptor of epitopes. अब दोनों एक दूसरे को पहचानता है. मान लिया एक अगर यहाँ है epitope तो epitope फिट हो रहा है किसमें, एंटीबॉडीज के पार्ट में. तो जो एंटीबॉडीज का पार्ट होगा जो कि ईपीटोप को रिसेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, डेट इज कॉल्ड पाराटोप्स. उसका नाम देंगे पाराटोप. मीन्स पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज acts as a receptor of epitope. It's called paratope. It means paratope is the part of antibody, epitope is the part of antigens. Okay, now see the structure of antibodies. Now see antibody is a complex glycoprotein secreted by B lymphocytes. Okay, complex glycoprotein secreted by B lymphocytes. Each antibody molecule consists by combination of 4 polypeptide chain in which 2 are heavy chain and 2 are light chain. Okay, 2 heavy consist of 4 polypeptide chain in which 2 heavy chain and 2 light chain, commonly called H2L2, 2 heavy and 2 light. In this figure, this is a one heavy chain and this is other heavy chain. Okay, and this is light chain. So 2 heavy chains and 2 light chain. Okay, these 4 chains are interconnected by disulfide bond and forms bi-shaped structures. Okay, these 4 chains are interconnected
interconnected by disulfide bond and forms bisect structure. Okay, 1 2 these are disulfide bond and each chain consists of 2 parts. अगर इसका बात करें तो इसका भी 2 पार्ट्स है, इसका बात करें इसका भी 2 पार्ट्स. इट मीन्स ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. हैज 2 पार्ट्स. One is variable region and other is constant region. In this figure, green colored part is variable region and black colored part is constant region. In variable region, paratope means antigen binding sites are present. These are antigen binding site. So antigen binding site present in variable region, not in constant region. Okay, अब देखिए, these are polypeptide chain and polypeptide chain consist by combination of amino acids. तो जब एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होगा तो एक इंड होगा COOH ग्रुप का, COOA आयंस का, और एक इंड होगा अमोनियम आयन का. तो यह जो इंड है कार्बोक्सिलिक आयन का इंड इधर होगा, यहां भी और यहां भी. और अगर इस इंड की बात करें तो अमोनियम इंड का आयन होगा, NH3+ आयन, NH3+ आयन. ठीक है ना. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब इसी अरेंजमेंट से, जैसे अगर देखें इसी को हम बनाए इस रूप में, देखिए दिस इज एंटीजन and this antigen is attached. It means these are epitope and epitope is attached with paratope. यानी अगर हम अलग से देखें तो इस रूप में स्ट्रक्चर देखिए, यह स्ट्रक्चर किसका हो गया, यहां नाम लिख देता हूं एंटीजन बाइंडिंग साइट. कंफ्यूज कर दीजिएगा इधर से हटाते हैं. चलिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट है. अब देखिए यहां एंटीजन अटैच हो गया. ठीक है ना. तो एक हो गया पार्ट, जो एंटीजन का पार्ट है वो कहलाएगा इपिटोप, और जो एंटीबॉडीज का पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड पाराटोप. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज एंड दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंटीजन एंटीबॉडीज में डिफरेंस भी आ सकता है, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एक नाम और जान लीजिए, वेरिएबल रीजन के लिए एक टर्म भी होता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स, इन शॉर्ट फॉर्म FAB. फ्रैगमेंट किसके लिए, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट. और दूसरा जो कांस्टेंट है इसके लिए हम यूज करते हैं FC, मीन्स क्रिस्टेलाइन फ्रैगमेंट. नाम याद रखेंगे, FC क्रिस्टेलाइन फ्रैगमेंट, FAB एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स. It means antigen binding fragments present in variable region and it is present in constant region. Types of antibodies are immunoglobulin. Antibody is a protein, means immunoglobulin,
and immunoglobulin is of different types such as IgA, IgD, IgE, IgG, IgE. ठीक है ना, ये सभी एंटीबॉडीज का टाइप्स है. IgA present in colostrum means mother milks, in saliva, mucus and sweat. Function: protects body surface. If any foreign particle antigens comes in contact of our body surface, then IgA destroy them. Okay. Second, IgD on the surface, present on the surface of lymphocytes, B lymphocyte and T lymphocyte, and it activates the lymphocyte to produce antigen. Antigen secrete करने के लिए B lymphocyte को activates करता है. Next, IgE on mast cell and basophils, present on mast cell and basophil, induce to release histamines and other inflammatory substance. It means this antibody is responsible for allergic reactions. याद रखिएगा, antibodies responsible for allergic reaction or allergy, that is IgE. IgE is responsible for allergy. Okay. IgG present in blood and interstitial fluid. पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला है तो IgG है. इट मीन्स मोस्ट एबंडेंस एंटीबॉडीज IgG. Okay. And IgM present in blood plasma acts as agglutinin. Agglutinin means helps in agglutination. यह एंटीजेन को, माइक्रोब्स को एग्लूटिनेट करता है, एक दूसरे से चिपका देता है, और पूरे एंटीबॉडीज में सबसे ज्यादा साइज का जो साइज लार्जेस्ट साइज है वो है IgM. लार्जेस्ट साइज एंटीबॉडीज IgM. ओके, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको. चलिए अब एक टॉपिक थोड़ा सा और बच गया, छोटा सा टॉपिक, एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज का काम है एंटीजन को समाप्त करना. तो एंटीजन को कैसे समाप्त करता है? कुछ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, कुछ उसको ऑप्सोनाइजेशन करता है, कुछ एग्लूटिनेशन करता है. तो प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडीज. नाउ सी एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. Antibodies destroy the acts upon antigens in different ways. Okay, acts upon antigens in different ways. Such as neutralization. First method is neutralization. ठीक है. In neutralization, antibodies covers the antigens or toxin. And convert वायरुलेंट इंटू नॉन वायरुलेंट. अगर कोई वायरुलेंट है, उस नेचर का है, हार्म पहुंचाने वाला है, तो उसको नॉन वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. कन्वर्ट्स वायरुलेंट इंटू नॉन वायरुलेंट. वायरुलेंट मीन्स एक्टिव फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर दिया नॉन वायरुलेंट में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, या फिर वह न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ गया. ओके. सेकेंड इज एग्लूटिनेशन.
एग्लूटिनेशन, सेकेंड इज एग्लूटिनेशन। एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, यह क्या करता है, कुछ सरफेस पर जमा होता है और एंटीजेन में कुछ न कुछ चेंजेस करता है। इट कॉजेस क्लम्पिंग ऑफ एंटीजेंस बाय चेंजिंग इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे अगर अभी हमने देखा ईपीटोप और पाराटोप, अगर ईपीटोप एंटीजेन में है, पाराटोप एंटीबॉडी में है, अगर ईपीटोप्स के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है एंटीजेंस में, रिजल्ट क्या होगा, एंटीजेंस एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देगा और उस प्रोसेस का नाम देंगे एग्लूटिनेशन। ओके, एंड थर्ड ऑप्सोनाइजेशन। और एडहेरेंस, मतलब क्या, ऑप्सोनाइजेशन एडहेरेंस मतलब भी चिपकना होता है। इट सम एंटीबॉडीज कॉल्ड ऑप्सिन, एंटीबॉडीज का नाम देंगे ऑप्सिन, और वह क्या होता है, एंटीजेन से चिपक, एंटीबॉडीज मीन्स ऑप्सिन, ऑप्सिन, ऑप्सोनिन कह सकते हैं। ऑप्सोनिन गेट्स अटैच्ड विथ एंटीजन एंड easily recognized by phagocytes से। अगर ऐसे हमारे बॉडी में एंटीजेंस है और उस एंटीजेंस को फैगोसाइट सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, पहचान नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में ऑप्सोनिन क्या करता है, वह एंटीजेन के सरफेस से चिपक जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि फैगोसाइट्स के द्वारा आसानी से पहचान लिया जाता है, और जब फैगोसाइट उसको पहचान लेगा, रिजल्ट क्या होगा, उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, फोर्थ प्रेसिपिटेशन। सम एंटीबॉडीज combines with soluble antigen, soluble antigen के साथ कंबाइन कर लिया, एंड convert them into insoluble form। और जब इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, वह प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फोर्थ लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ सेल। सम एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक सेल्स और एंटीजेनिक सेल्स। ठीक है ना, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है, या उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिलिटी को चेंज करता है। रिजल्ट क्या होता है, बाहर से कुछ न कुछ केमिकल जाना शुरू करता है, लास्टली ब्लास्ट कर जाता है। तो यह हमने देखा एंटीजेन और एंटीबॉडी, खास करके एंटीजेन में बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कहाँ मिलता है, मदर मिल्क में कौन सा है, सिर्फ अकरेंस याद रखेंगे। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, दोनों में डिफरेंस, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर।